ਤਾਂ ਪਲਾਂਟ ਬਰੀਡਿੰਗ। तो कहता भी ਬਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਬਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ तीन चीज इन्वॉल्व करूंगा। पहला इन्वॉल्व करूंगा मैं प्रिंसीपल, ठीक है जी, क्योंकि प्लांट ब्रीडिंग के प्रिंसीपल होंगे। दूजा मैं इन्वॉल्व करूंगा ब्रीडिंग मेथड, ठीक है जी, ब्रीडिंग मेथड। वो कहता भी जो प्लांट ब्रीडिंग है वो कहता प्लांट ब्रीडिंग मीनस वो कहता इट कंसिस्ट प्रिंसीपल एंड ब्रीडिंग मेथड फॉर एनी डिजायरेबल चेंज इन क्रॉप जीन सीक्वेंस या एनी डिजायरेबल चेंज इन जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द क्रॉप। तो कहता भी ਜਿਹੜਾ crop ਦੇ जीन सीक्वेंस या crop ਦੇ genetic makeup ਤਾਂ change in genetics makeup of the crop और ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ change ਚਾਹੀਦਾਗਾ, desirable change ਚਾਹੀਦਾਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ genetic makeup of crop तो कहता what is the plant breeding, ਤਾਂ ਇਹ तीनों wording ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ plant breeding ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ principal and breeding method, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ principal और breeding method ਨੂੰ यूज करके जो भी डिजायरेबल क्रॉप प्लांट ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਪਲਾਂਟ ਬਰੀਡਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾ डिजायरेबल चेंज ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਨੀ डिजायरेबल चेंज, अब डिजायरेबल चेंज ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੌਪ ਦਾ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ੋਰਟ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨਸ ਕ੍ਰੌਪ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ੋਰਟ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨਸ ਵੈਰਾਈਟੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, क्रॉप ਦਾ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, क्रॉप ਦਾ ਸੋਵਿੰਗ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, क्रॉप ਦਾ ਯੀਲਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, क्रॉप ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਇਨਸੈਕਟ ਪੈਸਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, क्रॉप ਦਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਚੇਂजेज ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸ ਦੇ ਥਰੂ, ਬਰੀਡਿੰਗ ਮੈਥਡ ਔਰ ਬਰੀਡਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਥਰੂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਲਾਂਟ ਬਰੀਡਿੰਗ। अब ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਲਾਂਟ ਬਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਲਾਂਟ ਬਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ क्रॉप ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। अब ਤੁਸੀਂ क्रॉप ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਲੋ क्रॉप ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਲਾਈਫ 'ਚ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪਲਾਂਟ ਬਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਲਾਂਟ ਬਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਆਫ ਪਲਾਂਟ ਬਰੀਡਿੰਗ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਮੇਜਰ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਕੀ ਹੈਗਾ ਪਲਾਂਟ ਬਰੀਡਿੰਗ। ਤਾਂ ਮੇਜਰ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਬਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਮੇਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਬਰੀਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਜੋ ਮੇਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈ ਈਲਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਈਲਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲੋ ਹੈ ਕ੍ਰੌਪ ਦਾ ਤਾਂ ਫਾਰਮਰ ਉਸ ਵੈਰਾਈਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਕ੍ਰੌਪ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਹਾਈ ਈਲਡ। ਅਗਰ ਕ੍ਰੌਪ ਦਾ ਈਲਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਫਾਰਮਰ ਉਸ ਕ੍ਰੌਪ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਵੈਰਾਈਟੀ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੂਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਬਰੀਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਮੇਜਰ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਈਲਡ ਹੈਗਾ। तो कहता भी पहला ऑब्जेक्टिव की है हाई यील्ड, तो वो कहता भी मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग एनी ब्रीडिंग प्रोग्राम ਤਾਂ ਮੇਜਰ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਹੈਗਾ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਮੇਜਰ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੈਕਿੰਡ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਅਸੀਂ ਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ, तो उस डिजीज तो ਅਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹ ਰਹੇ हैं, क्योंकि डिजीज अगर आऊगी तो क्रॉप कल्टीवेशन डिफिकल्ट हो जाऊगा। क्यों? क्योंकि कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन इंक्रीज होगा। तो उस कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ਨੂੰ मिनिमाइज ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਡਿजीज ਔਰ ਇਨਸੈਕਟ ਪੈਸਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਡਿजीज ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੈਰਾਈਟੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਰੀਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। अब ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਡਿजीज ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੈਰਾਈਟੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਡਿजीज ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜੀਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। तो पूछोगे भी केड़ा ब्रीडिंग मेथड है जिस तो डिजीज रजिस्टेंस करैक्टर ट्रांसफर होंदे। तो जदों ट्रांसफर दी गल आ गई ना और थोड़े तो पूछा गया ब्रीडिंग मेथड केड़ा यूज होगा, तो बेक क्रॉस दे फेवर च जाना है, लेकिन थोड़ा टर्मिनोलॉजी दे हिसाब नाल चलना है। बेक क्रॉस दे थ्रू सिर्फ सिंगल जीन ट्रांसफर होंदा है, या जो करैक्टर कंट्रोल्ड बाई सिंगल जीन यानी मोनोजेनिक करैक्टर, और मोनोजेनिक करैक्टर दा दूजा नाम होंदा क्वालिटेटिव करैक्टर। अगर तुसी क्वालिटेटिव करैक्टर या मोनोजेनिक करैक्टर या सिंगल जीन ट्रांसफर करना है तो बेक क्रॉस तो, लेकिन अगर मोर देन वन यानी सेवरल जीन ट्रांसफर करने तो फिर लगूगा पेडिग्री ब्रीडिंग मेथड। केड़ा मेथड लगूगा? अब क्वेश्चन सुनो, एग्जाम से क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन आऊगा डिजीज रेजिस्टेंस करैक्टर ट्रांसफर बाई, सीधा करा रहा है तो बेक क्रॉस हैगा, केड़ा हैगा। लेकिन अगर क्वेश्चन आंदा है अपने पॉलीजेनिक या क्वांटिटेटिव करैक्टर ट्रांसफर बाई, फिर पेडिग्री मेथड है, केड़ा हैगा। क्लियर? उसके बाद इंसेक्ट रेजिस्टेंस डेवलप करना चाह रहे हो तुसी, तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की हैगा इंसेक्ट रेजिस्टेंस। क्लियर?
ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰੌਪ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨਸ ਕਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਫਾਰਮਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰੌਪ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰੂਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਈਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਕ੍ਰੌਪ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ ਤਾਂ ਫਾਰਮਰ ਉਸ ਕ੍ਰੌਪ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਨਾ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਪਲਸ ਕ੍ਰੌਪ ਤੋਂ। ਅਬ ਜਿਹੜੀ 올ਡ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਪਲਸ ਕ੍ਰੌਪ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਸੀ? ओल्ड वैरायटी ऑफ पल्स क्रॉप था। ओल्ड वैरायटी ऑफ पल्स क्रॉप ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਤਾਂ ओल्ड वैरायटी ऑफ पल्स क्रॉप ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਦਾ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ऑल ਫਲਾਵਰ ਜੋ ਹੈ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਫਲਾਵਰ ਵਨ ਟਾਈਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫਲਾਵਰ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਮੰਥ 'ਚ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਮੰਥ 'ਚ ਹੀ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੇਮ ਟਾਈਪ ਤੇ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੇਮ ਟਾਈਪ ਦੇ ਲਈ ਬੋਲਦੇ ਸਿੰਕਰੋਨਸ। ਤਾਂ ओल्ड वैरायटी ਦਾ ਜੋ ਕੈਰੈਕਟਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸੀ? ਨੋਨ ਸਿੰਕਰੋਨਸ। ਤਾਂ ਨੋਨ ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਉਹਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਸੀਗਾ ਕਿਹਦਾ? ਪਲਸ ਕ੍ਰੌਪ ਦਾ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਉਹਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਨੋਨ ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਨ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹਾਰਵੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜਾ 올 ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕ੍ਰੌਪ ਆ ਵਨ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹਾਰਵੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਜੋ ਪਲਸ ਕ੍ਰੌਪ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੋਡ ਹੈ, ਪੋਡ ਮਤਲਬ ਫਲੀਆਂ ਤੋੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੇਬਰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਲੇਬਰ ਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਪਲਸ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਨਿਊ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਪਲਸ ਕ੍ਰੌਪਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ? ਸੇਮ ਟਾਈਮ 'ਚ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਚੋਰਿਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜਾ 올ਡ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗਾ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਸੀ ਯਾਨੀ ਜੋ ਪੋਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦਾਣੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਸੈਟਰਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ। ਅਬ ਦਾਣੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਸ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਯੀਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਲਸ ਕ੍ਰੌਪ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਆ ਜਿਹੜਾ ਨੋਨ ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਸੈਟਰਿੰਗ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬੱਚੇ? ਨੋਨ ਸੈਟਰਿੰਗ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਪਲਸ ਕ੍ਰੌਪ ਦਾ ਮੇਜਰ ਬਰੀਡਿੰਗ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਪਲਸ ਕ੍ਰੌਪ ਦਾ ਮੇਜਰ ਬਰੀਡਿੰਗ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਨੋਨ ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਫਲਾਵਰਿੰਗ, ਸੌਰੀ ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਫਲਾਵਰਿੰਗ the synchronous flowering and non scattering। ਤਾਂ ਕਿਹਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈਗਾ? ਤਾਂ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈਗਾ ਪਲਸ ਕ੍ਰੌਪ ਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਪਲਸ ਕ੍ਰੌਪ ਦਾ ਮੇਜਰ ਬਰੀਡਿੰਗ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਕਲੀਅਰ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਚੇਂਜ ਇਨ ਮੈਚੋਰਿਟੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨਸ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਬਰੀਡਿੰਗ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਚੇਂਜ ਇਨ ਮੈਚੋਰਿਟੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨਸ। अब चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशंस ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਸ਼ੋਰਟ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨਸ ਵੈਰਾਈਟੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਸ਼ੋਰਟ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨਸ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੱਸੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਇਨ ਮੈਚੋਰਿਟੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਚ ਕਿ ਸ਼ੋਰਟ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਕਿਉਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਪਿੰਗ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। मतलब कोई भी फार्मर है मोर देन 2 क्रॉप लेना चाह रहा है। अब मोर देन 2 क्रॉप 1 ईयर च लेना है तो क्रॉप का ड्यूरेशन छोटा होगा ताकि वो दो तो वध क्रॉप ले पाऊगा। अगर ड्यूरेशन लंबा, जी मैं एग्जांपल ले लेना शुगर केन, अब शुगर केन 10 तो 12 महीने की क्रॉप है तो साल च एक ही क्रॉप ले पा रहे। अगर उत्थे वीट राइस की गल करूंगा तो वीट राइस जो अपने 4 तो 6 महीने की क्रॉप है, एक क्रॉप तो साल च 2 क्रॉप ले रखे ले रहे। अगर उत्थे अगर मान लो जिवें 60 ही मूंगी है वो 60 दिनों च पक के तैयार हो जाती है। हुण जायद सीजन मेज हैगा वो अपने 80-90 दिनों के अंदर पक के तैयार हो रहेगा। ठीक है। उसी तरह वीट के अंदर एक वैरायटी है PBW 757 वो 114 दिनों के अंदर मैच्योर हो रही है। तो शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी क्यों दी रिक्वायरमेंट है? क्योंकि फार्मर मोर देन 2 क्रॉप ग्रो करना चाह रहा है या फार्मर मोर नंबर ऑफ क्रॉप लेना चाह रहा है फील्ड तो फिर की है जो मैच्योरिटी ड्यूरेशन उन्होंने चेंज कर दिया जाऊगा और मोस्ट कॉमनली किदा कर दिया जाता है शॉर्ट ड्यूरेशन। थोड़े तो क्वेश्चन पूछा जाएगा शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी दसो। तो आप एग्जांपल के तौर पर अगर शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी PR मतलब पंजाब राइस PR 126 शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी है, ओनली 93 डेज के अंदर मैच्योर हो जाती है। तो थोड़े तो क्वेश्चन पूछा जाएगा मैच्योरिटी टाइम ऑफ PR 126 दसो कितना, या दूसरा क्वेश्चन होगा लेट सोविंग वैरायटी ऑफ राइस दसो, या क्वेश्चन होगा अर्ली मैच्योर वैरायटी क्योंकि एक 93 डेज से मैच्योर हो रही था अर्ली मैच्योर हो रहेगा। तो अर्ली मैच्योर वैरायटी या क्योंकि मैं जो वर्डिंग यूज करें
इदा की वर्डिंग पीए के एग्जाम च आई हुई है, या पीए तो जो MSc का या कोई भी पेपर होंगे उस क्वेश्चन आया, पहला क्वेश्चन है वो कहता शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटी ऑफ राइस दसो, दूजा क्वेश्चन है अर्ली मैच्योर वेराइटी दसो, और तीजा क्वेश्चन है मैच्योरिटी टाइम ऑफ PR 126 दसो। तो PR 126 अर्ली मैच्योर वेराइटी है, मैच्योर इन 93 डेज होंगी है, और लेट सोविंग वेराइटी है, और DSR के अंदर ग्रो की जाती डायरेक्ट सीडेड राइस के। उसके बाद नेक्स्ट वेराइटी है PBW मतलब पंजाब व्हीट 575 किन्ने दिनों के अंदर मैच्योर होंगी है। उस तरह एक वेराइटी है मेज दी पंजाब हाइब्रिड मेज 2 ओनली 83 डेज के अंदर मैच्योर होंदा गा, किन्ने दिनों के अंदर। तो शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटी ऑफ मेज, शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटी ऑफ राइस और शॉर्ट ड्यूरेशन, तो सानू की शॉर्ट ड्यूरेशन। और उसके बाद होर इसके अंदर असं एग्जाम्पल एड करांगे तो साठी मूंगी। अब आ जी साठी मूंगी मतलब समर मूंग, बुक्स लैंग्वेज वर्ड की आऊगा। अब आ समर मूंग जेड़ा साठी मूंगी, ठीक है जी। और यदि जी वेराइटी लुधियाने तो रिलीज होगी, और कि वेराइटी है समर मूंग की, तो समर मूंग लुधियाना SML समर मूंग। तो जो समर मूंग लुधियाना अपने 70 दिनों के अंदर मैच्योर होंदा गा। तुसी पैकेज के अंदर देखोगे तो किसी च 72 डेज लिखा है, किसी के अंदर 70 डेज लिखा है। तो फिर असी नेक्स्ट ब्रीडिंग के अंदर की किया गया, शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटी डेवलप की गई। अब ये शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटी की डिमांड क्यों है, क्योंकि फार्मर को क्रॉप ग्रो करने वास्ते लिमिटेड टाइम है। अब आप जो PBW 57 जो है या 757 जो है, अब इस वेराइटी की डिमांड क्यों हुई। देखो कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसका कोई सोल्यूशन होगा, अगर प्रॉब्लम नहीं आई तो सोल्यूशन की है। तो राइस पंजाब के अंदर जो क्रॉप रोटेशन होगा राइस व्हीट, तो जो असी राइस की हारवेस्टिंग करते सी तो कई बार क्या होता है, क्योंकि पंजाब के अंदर जो मोस्ट कॉमन वेराइटी बीजी जाती है झोने की, वो बीजी जाती है पूसा 44। यूनिवर्सिटी उन्होंने रिजेक्ट कर दी है, यूनिवर्सिटी कहती है भी पूसा 44 वेराइटी ऑफ राइस आर नॉट रिकमेंडेड इन पंजाब। क्यों नहीं है, क्योंकि एक तो लेट मैच्योर होती है, दूजा उसकी वाटर रिक्वायरमेंट ज्यादा है। अब फार्मर वही ग्रो करता क्यों, क्योंकि ईल्ड ज्यादा होता, क्यों फार्मर को तो ईल्ड चाहिए। अब फार्मर जो पूसा 44 वेराइटी राइस की ग्रो करूगा तो जो हारवेस्टिंग होगी राइस की तो लेट होगी, तो उन्होंने व्हीट सोविंग वास्ते टाइम नहीं मिलता। जो व्हीट सोविंग वास्ते टाइम नहीं मिलूगा तो व्हीट सोविंग लेट हो रहा है। अब लेट हो रहा है तो लेट सोविंग वेराइटी चाहिए। अब आ जो PBW 757 जनवरी के अंदर बीजी जाती है, कदों इसका सोविंग टाइम है और एक्स्ट्रा लेट वेराइटी हैगी, तो आ जरूरत पई। क्लीयर ऑब्जेक्टिव भी चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन की रिक्वायरमेंट क्यों है ब्रीडिंग के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हैगा थोड़ा डोरमेंसी। अब कुछ डोरमेंसी का मतलब होंदा है, तो देखो बच्चे अगर सीड जर्मीनेट कर रहा है तो नॉन डोरमेंट है, भी सीड के अंदर अगर जर्मीनेशन हो रहा है तो की है पुतो नॉन डोरमेंट हैगा। अब अगर क्रॉप नॉन डोरमेंट है, क्योंकि वैसे तो सीड जर्मीनेशन चाहिए, लेकिन थ्रू आउट द सीजन सीड जर्मीनेशन थोड़ी चाहिए। अब जिवें सपोज करो तुसी कोई क्रॉप हारवेस्ट कर लिया और हारवेस्टिंग के बाद ओदा सीड अगर इमीडिएटली जर्मीनेट कर गया तो उस क्रॉप का तो जो क्वालिटी डिटेरिएट हो गया। तो फिर कुछ क्रॉप के अंदर की होंदा हारवेस्टिंग के बाद भी सीड जर्मीनेट कर जाता है। अगर ओदा सीड जर्मीनेट करे, जिवें एग्जांपल लेंदा पोटैटो, पोटैटो स्टोरेज के अंदर जर्मीनेट कर जाता जिन्हों तुसी कहंदे स्प्राउटिंग। अगर पोटैटो च स्प्राउटिंग हो रही है सीजन तो पहला, या सीजन तो पहला जर्मीनेट हो रहा है, जिवें मान लो सीजन की पोटैटो तो अक्टूबर सोविंग टाइम है, अगर अक्टूबर तो पहला जर्मीनेट करे तो पोटैटो का क्वालिटी डिटेरिएट हो रहा है, सीड क्वालिटी या ट्यूबर क्वालिटी। उसी तरह अगर कोई क्रॉप भी अगर जर्मीनेट करिए तो भी क्वालिटी डिटेरिएट हो रही है। तो सानू की है कुछ क्रॉप जी आंदी है अर्ली जर्मीनेट कर दी है या क्विक जर्मीनेट कर दी है, जिन्हां दे अंदर डोरमेंसी नहीं होती, तो उस क्रॉप से सानू डोरमेंसी चाहिए है। तो कहता भी केड़ा क्रॉप है जिहदा सीड नॉन डोरमेंट है या डोरमेंसी ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव आर मोर इंपोर्टेंट इन। तो डोरमेंसी ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव जेड़ा पल्स क्रॉप के अंदर इंपोर्टेंट है, क्योंकि पल्स क्रॉप के अंदर मॉइस्चर मिल जाए स्प्राउट हो जाता, खाते हो ना स्प्राउट ग्राम। अब जेडे मर्जी सीजन से मॉइस्चर मिल जाए जर्मीनेट कर जूगा। अब सीड स्टोर कर रखा तुसी और वो मॉइस्चर मिल गया तो स्टोरेज ही जर्मीनेट कर जूगा। और दूजा स्प्राउटिंग किस होती है बारले के अंदर। तो जो बारले और पल्स क्रॉप है इन्हां दे अंदर डोरमेंसी करैक्टर या डोरमेंसी ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव ही सानू चाहिदा हैगा। क्लीयर। उसके बाद नेक्स्ट ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव है तुहाडा प्रेजेंट टाइम दे अंदर इंडिया जेड़ा हैगा फूड प्रोडक्शन या फूड सप्लाई दे अंदर सेल्फ डिपेंडेंट है। सेल्फ डिपेंडेंट मतलब भी साडे कोले बफर स्टॉक हैगा, और इन्ना बफर स्टॉक है भी पूरे इंडिया च अगर 2 साल भी कोई जीरो क्रॉप होवे या कोई भी क्रॉप ना होवे
ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਪਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੂਡ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਅਮਾਉਂਟ 'ਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਫੂਡ ਹੈ ਉਹ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਇਨ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਹਨੂੰ? ਮਾਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਸ ਮੀਨ ਵੀ ਫੂਡ ਆਰ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਇਨ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਸ। ਤਾਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੂਡ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮਾਈਨਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ? ਕੁਆਲਿਟੀ ਫੂਡ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅੱਛੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਅਸੀਂ ਕੀ ਰੱਖਾਂਗੇ? ਕੁਆਲਿਟੀ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਵੀ ਕ੍ਰੌਪ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਬਜੈਕਟ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਾਂਗੇ? ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਕੁਆਲਿਟੀ। ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੌਪ ਦਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚੇ? ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਕੁਆਲਿਟੀ। तो कहता भी जो कोई भी क्रॉप की अगर न्यूट्रीएंट क्वालिटी इंप्रूव कर दे तो उस प्रोसेस ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਇਓਫੋਰਟੀਫਿਕੇशंस। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਇਓਫੋਰਟੀਫਿਕੇशंस ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮਤਲਬ क्रॉप ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹੈ वैरायटी या क्रॉप वैरायटी ਦੇ ਅੰਦਰ न्यूट्रीएंट इंप्रूव ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ एग्जांपल ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਪੀਏ ਤੋਂ वैरायटी ਦੀ ਜੋ PBW जिंक 1, ठीक है जी। अब वीट ਦਾ वैरायटी और किसਦਾ रिच सोर्स ਹੈਗਾ? जिंक ਦਾ, ठीक है जी। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ पूसा विवेक, पूसा विवेक QPM 9। अब QPM अगर वर्ड आऊगा तो QPM ਦਾ मतलब क्वालिटी प्रोटीन मेज। QPM ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ? क्वालिटी। ਤਾਂ ਮੇਜ ਦੇ ਅੰਦਰ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वालिटी प्रोटीन वैरायटी डेवलप ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਮੇਜ ਦੀ वैरायटी रिच इन प्रोटीन ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ QPM वैरायटी, यानी क्वालिटी प्रोटीन मेज वैरायटी। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੂਸਾ ਵਿਵੇਕ ਆ QPM वैरायटी ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ ਵੀ ਬਰੀਡਿੰਗ ਫॉर ਕੁਆਲਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਬਰੀਡਿੰਗ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਲਾਸਟ। ਕੁਝ ਕ੍ਰੌਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ? ਟੌਕਸਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ। ਟੌਕਸਿਕ ਮਤਲਬ ਐਂਟੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਲ ਫੈਕਟਰ। ਉਹ ਐਂਟੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਲ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕ੍ਰੌਪ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। अगर उस क्रॉप के अंदर ਅਸੀਂ अगर एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर ਨੂੰ रिमूव कर दईए तो उस क्रॉप ਦੀ वैल्यू ਵੱਧ ਜੂਗੀ। ਜਿਵੇਂ मैं एग्जाम ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ क्वेश्चंस ले रहा, ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ एग्जाम 'ਚ क्वेश्चंस ਆਇਆ, ਇੱਕ ਮਸਟਰਡ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਕਨੋਲਾ ਮਸਟਰਡ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਨੋਲਾ ਆਇਲ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਮਸਟਰਡ ਆਇਲ। ਆ ਮਸਟਰਡ ਦੇ ਆਇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਂਟੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਲ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ यूरेसिक एसिड। अब वो यूरेसिक एसिड इन द मस्टर्ड ऑयल ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਐਲਰਜੀ ਕੋਜ਼ ਕਰਦਾ। यानी अगर मस्टर्ड ਦੇ ਅੰਦਰ यूरेसिक एसिड ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਊਗੀ। अगर आप इस फैक्टर ਨੂੰ हटा दिए तो एलर्जी की प्रॉब्लम नहीं होगी। जिवें तुसी बेसिक लाइफ के अंदर या अपने लाइफ के अंदर एक चीज तुसी सुनिया होगा व्हीट एलर्जी। बहुत जे पर्सन है जिन्होंने कणक के आटे तो प्रॉब्लम हैगी, जिहदी वजह करके वो अगर कणक का आटा खाणगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज नू या प्रॉब्लम नू फेस करदे। अगर आप उस व्हीट एलर्जी वाले फैक्टर नू अगर रिमूव कर दिए तो पर्सन नू कोई प्रॉब्लम नहीं व्हीट फ्लोर फीड करन च या व्हीट आटा खाण च। तो पीछे क्वेश्चन आया भी वो कहता भी कनोला ऑयल इज बेटर देन मस्टर्ड ऑयल। वो कहता किस करैक्टर दे अंदर कनोला ऑयल जेड़ा बेटर है। तो कनोला ऑयल दे अंदर लो यूरेसिक एसिड होंदा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप है जिन्हां दे अंदर एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर होंदे या उन्हां दे अंदर टॉक्सिक सबस्टेंस होंदे। अगर असी क्रॉप दा टॉक्सिक सबस्टेंस रिमूव करता या ओदे अंदर असी अगर ओदे अंदर टॉक्सिक सबस्टेंस नू डिक्रीज करता तां भी उस प्रोडक्ट दी इंप्रूव होगी क्वालिटी। तो असी की करांगे फिर रिमूव या एलिमिनेट, या तो रिमूव वर्ड यूज करो या एलिमिनेट, रिमूव द टॉक्सिक सबस्टेंस, ठीक है जी। तो आता सीगे थोड़े मेन ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव जितो क्वेश्चंस आने। तो रिमूव द टॉक्सिक सबस्टेंसेस, ठीक है जी। क्लियर होए ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव? मैं दोबारा रिपीट कर दिया। पहला ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव तुसी क्या भी की हैगा? हाई यील्ड। तो मेन ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव की होंदा किसी भी प्रोग्राम दा? हाई यील्ड। फिर तुसी क्या भी सानू डिजीज रेजिस्टेंस करैक्टर चाहिदा है, इंसेक्ट चाहिदा है। तुसी क्या भी डिजीज रेजिस्टेंस करैक्टर ट्रांसफर बाय बैक क्रॉस। लेकिन अगर टर्मिनोलॉजी दे नाल क्वेश्चन पुट हो रहा है तो फिर दो टर्म याद रखनी है। अगर क्वांटिटेटिव वर्ड यूज हो रहा है तो पेडिग्री मेथड, अगर क्वालिटेटिव वर्ड यूज हो रहा है तो बैक क्रॉस, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव तुसी क्या भी जेड़ा ओल्ड वैरायटी ऑफ पल्स क्रॉप्स है ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨॉन सिंक्रोनस फ्लावरिंग एंड सेटरिंग ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਜੋ ਨਿਊ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਪਲਸ ਕ੍ਰੌਪਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂਗੀ? ਸਿੰਕ੍ਰੋਨਸ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਮੈਚੋਰਿਟੀ ਹੈ ਔਰ ਨॉन सेटरिंग ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਗਾ ਮੇਨ ਬਰੀਡਿੰਗ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਆਫ ਪਲਸ ਕ੍ਰੌਪ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੋਬ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਡਬਲ ਏਓ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਮਈ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਵੀ ਮੇਜਰ ਬਰੀਡਿੰਗ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਆਫ ਪਲਸ ਕ੍ਰੌਪ।
और वो सेम फिर वापिस इधर पंजाब के MSc के एग्जाम से क्वेश्चन आया, एक दो होर छोटे छोटे एग्जाम होए उन्होंने अंदर भी आया। और एक और देख लियो कदे भी एग्रीकल्चर के अंदर कई बार कई क्वेश्चन घूमन लग जाता ना पेपर च, तो बड़ा ट्रेवलिंग करता है। जिवें 2020 का कोई मर्जी पेपर उठाओ, तुसी किसी मर्जी जॉब का पेपर उठाओ, ग्राउंड नट के अंदर एफ्लाटॉक्सिन आता है, तो 2020 के हर पेपर के अंदर एफ्लाटॉक्सिन ने अपनी की है पोजीशन बनाई। अब वो जिवें एक क्वेश्चन है ना खेरा डिजीज ऑफ राइस, अब कोई लेवल थोड़ी है क्वेश्चन का, लेकिन अगला आता है अगले का एटीट्यूड है भी मैं ताऊंगा भी है वो कई होंगे ना, क्योंकि वो थोड़ा फुफड़ टाइप कैरेक्टर है भी मैं तो आऊंगा ही आगे तो क्वेश्चन आया भी मेजर ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ पल्स क्रॉप था सिंक्रोनस फ्लावरिंग एंड नॉन सेटरिंग। क्लियर। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੇਂਜ ਇਨ ਮੈਚੋਰਿਟੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜੋ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਲੈਂਡ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੋਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕ੍ਰੌਪ ਇਨ ਏ ਈਅਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੋਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕ੍ਰੌਪ ਇਨ ਏ ਈਅਰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ੋਰਟ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰੌਪ ਗਰੋ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਕੀ ਗਰੋ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ? ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੇਂਜ ਇਨ ਮੈਚੋਰਿਟੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸ਼ੋਰਟ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਵੈਰਾਈਟੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ੋਰਟ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਵੈਰਾਈਟੀ ਕਿਹੜੀ, ਸਮਰ ਮੂੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਸਾਟੀ ਮੂੰਗੀ, PR 126 PBW 757 और पंजाब हाइब्रिड मेज 2, पंजाब हाइब्रिड मेज 2 किन्ने दिनों च मैच्योर होता है। उस दे बाद नेक्स्ट ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव च तुसी क्या भी कुछ सीड जेड़ा डोरमेंट नहीं होता, वो स्टोरेज के अंदर जर्मीनेशन कर जाता है। अगर स्टोरेज से जर्मीनेशन होगा तो सीड की क्वालिटी डिटेरिएट होगी। तो जिस क्रॉप का सीड स्टोरेज से जर्मीनेट कर रहा है तो उसके अंदर सानू की चाहिए, डोरमेंसी चाहिए। तो कहता डोर कीदा स्टोर से जर्मीनेट कर जाता, पल्स और बारले का। तो पल्स और बारले के अंदर सानू किदा दा करैक्टर चाहिए, डोरमेंसी वाला भी चाहिए। उसके बाद तुसी क्या भी प्रेजेंट टाइम के अंदर इंडिया जेड़ा है, इंडिया वर्ल्ड नू भी लगा लो, इंडिया या वर्ल्ड जेड़ा हैगा वो फूड दे अंदर ता सफिशिएंट है, लेकिन फूड आर डेफिशिएंट इन न्यूट्रिशन। और जदों न्यूट्रेंट डेफिशिएंस फूड जदों किसी कंट्री दे अंदर या किसी कंट्री की पॉपुलेशन सफरिंग फ्रॉम न्यूट्रेंट डेफिशिएंसी, जदों न्यूट्रेंट डेफिशिएंसी तो प्रॉब्लम नु फेस कर दिए तो कहते माल न्यूट्रिशन। तो प्रेजेंट टाइम के अंदर माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, ठीक है जी। अब दूसरा चलो माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम, अब एक रिच फैमिली हो तो भी सैलेड सलूड्स खा लूगा ना, बिदाम बदूम भी खा लूगा। अब बेचारा गरीब है वो कितों बिदाम खाऊगा या कितों सलाद खाऊगा, ओदे तो शाम नू अगर करे सब्जी बन जाए ता भी बहुत है, लेकिन वो रोटी तो खाऊगा ना, या वो अगर ओदा जो भी फूड हैबिट है या रोटी या चावल है वो तो खाऊगा। अगर आप रोटी के अंदर मतलब जो बीट है ओदी क्वालिटी इंप्रूव कर दी, न्यूट्रिएंट क्वालिटी या चावल की क्वालिटी इंप्रूव कर दी तो उन्हें चावल खाऊगा तो बॉडी में अपने आप सप्लाई होगी न्यूट्रिएंट की। जदों तुसी कोई भी क्रॉप दा या कोई भी वैरायटी दा न्यूट्रिशन क्वालिटी इंप्रूव कर दे तो उन्हें कहते बायो फोर्टिफिकेशन। तो कहता भी जो बायो फोर्टिफिकेशन तो जो वैरायटी बनती है उन्हें कहते बायो फोर्टिफाई वैरायटी। तो तुसी क्या भी डिफरेंट वैरायटी है जो बायो फोर्टिफाई है, जिवें तुसी एग्जांपल है अभी बीट दी जिंक रिच वैरायटी है, फिर पूसा विवेक QPM 9 या मेज दे अंदर जेड़ा QPM तो वैरायटी क्वालिटी प्रोटीन मेज, ठीक है जी। तो क्वालिटी प्रोटीन मेज जेडी वैरायटी होगी रिच इन प्रोटीन्स होगी। फिर नेक्स्ट तुसी क्या भी डिफरेंट क्रॉप दे अंदर डिफरेंट टॉक्सिक सबस्टांस होणगे, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ? अब ਕਿਹੜੇ टॉक्सिक सबस्टांस है वो ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ मैं एक ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव ਹੋਰ ऐड करना चाहूंगा और वो हैगा फोटो एंड थर्मो इनसेंसिटिव। तो नेक्स्ट ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव की हैगा फोटो एंड, फोटो का मतलब होता बच्चे लाइट, तो फोटो एंड थर्मो इनसेंसिटिव। पहला क्वेश्चन पूछा गया पीछे भी फोटो एंड थर्मो इनसेंसिटिव वैरायटी ऑफ राइस दसो, ADO 2020 के अंदर आया। क्योंकि असी पंजाब से जिन्ने भी जॉब के एग्जाम होया, ADO का होया, मार्क फेड का होया पिछे दे टाइम च, या हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर का उन्होंने नाल कंसीडर करके चलांगे। तो ADO के एग्जाम चाहे फोटो एंड थर्मो इनसेंसिटिव दसो। अब आ फोटो एंड थर्मो इनसेंसिटिव की रिक्वायरमेंट क्यों आई या इदा की वैरायटी डेवलपमेंट करने की जरूरत किथे पई। तो जो प्रीवियस वैरायटी या जो ओल्ड वैरायटी सी वो एक स्पेसिफिक रीजन और एक स्पेसिफिक क्लाइमेट कंडीशन से ग्रो होंदी सी। अगर उन्होंने क्लाइमेट कंडीशन मिलूगी तो क्रॉप ग्रो होगी, अदरवाइज नहीं होगा। ओदी वजह करके जो क्रॉप कल्टीवेशन हो रहा सी वो रीजनल बेसिस और स्पेसिफिक एरिया बेसिस हो रहा सी। अब जिवें राइस है तो कला साउथ च होंदा सी, नॉर्थ या पंजाब च चावल नहीं होंदा सीगा। जदों एक स्पेसिफिक रीजन च एक क्रॉप हो रही है तो अगर कोई भी प्रॉब्लम आऊगी या क्रॉप फेलियर होगा तो फेमाइन कंडीशन आने के चांसेज रहेंगे।
ਤਾਂ 1943 ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਗਾਲ ਫੈਮਾਈਨ ਆਇਆ ਰਾਈਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਦੋਂ ਬੰਗਾਲ ਫੈਮਾਈਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਆ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਗਰ ਆ ਰਾਈਸ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਅਦਰ ਏਰੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਪੀਪਲ ਦੀ ਡੈਥ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਲਾਈਮੇਟਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਗਰੋ ਹੋ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਲਾਈਮੇਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ नहीं चाहिए, स्पेशल लाइट नहीं चाहिए तो उन्होंने कहते इनसेंसिटिव। अब वो लाइट स्पेशल नहीं रिक्वायरमेंट है तो फोटो इनसेंसिटिव। अब टेम्परेचर नहीं था। प्रेजेंट टाइम के अंदर जो व्हीट और राइस की जो वेराइटी है या जो सेमी डवार्फ वेराइटी ऑफ व्हीट एंड राइस है, ऑल सेमी डवार्फ वेराइटी ऑफ व्हीट एंड राइस आर फोटो एंड थर्मो इनसेंसिटिव है। की है गया तो वो कहता भी तुसी हुण फोटो एंड थर्मो इनसेंसिटिव करैक्टर्स लेके आना चाह रहे हो। कई लेके आ रहे हो और मेंडल भाई साहब ने कहता सी भी करैक्टर कंट्रोल्ड बाय जीन। मेंडल ने की क्या सीगा करैक्टर कंट्रोल्ड बाय जीन। तो कहता भी केड़ा जीन है जेड़ा व्हीट और राइस दे अंदर या क्रॉप दे अंदर फोटो एंड थर्मो इनसेंसिटिव करैक्टर्स लेके आऊगा। अब बच्चे जीन अगर पूछा जाए ना तो ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना, जिदा दा करैक्टर ओदा दा जीन। अब करैक्टर की है फोटो एंड थर्मो इनसेंसिटिव। आ लो जी तो कहता भी आ PPD1 एंड 2 आ दोनों जेडे जीन है आ फोटो एंड थर्मो इनसेंसिटिव जीन है। दोनों की है फोटो एंड थर्मो तो पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता भी फोटो एंड थर्मो इनसेंसिटिव जीन दसो और दूसरा पूछा जाओ भी फोटो एंड थर्मो इनसेंसिटिव वेराइटी दसो। अब वेराइटी का एग्जांपल बच्चे थे मैं नहीं लूंगा, जो फील्ड क्रॉप पढ़ांगे जिवें राइस पढ़ांगे या अदर क्रॉप पढ़ांगे उत्थे डिस्कस करांगे भी राइस दा केड़ा वेराइटी फोटो एंड थर्मो इनसेंसिटिव है। क्लियर ता सीगे थोड़े ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव। अब थानू ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव डिसाइड हो गए हुण तुसीं इंप्रूवमेंट करना चाह रहे हो। की करना चाह रहे हो तो पहला तुसीं की कहा सी तुसीं कहा व्हाट इज द ब्रीडिंग तो तुसीं कहा भी एनी डिजायरेबल चेंज इन क्रॉप प्लांट या एनी डिजायरेबल चेंज इन जीन कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ क्रॉप प्लांट बाय प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ ब्रीडिंग। अब ब्रीडिंग जेड़ा है या क्रॉप इंप्रूवमेंट है वो दो चीज ते डिपेंड करता है। और पहला क्रॉप इंप्रूवमेंट डिपेंड करता है सिलेक्शन। अगर तुसी कोई भी करैक्टर जिवें आप ऑब्जेक्टिव ले ना, अगर इस किसी भी ऑब्जेक्टिव लई तुसी सिलेक्शन नहीं कर पा रहे हो या सिलेक्शन नहीं हो रहा तो ब्रीडिंग नहीं कर पाओगे, क्योंकि विदाउट सिलेक्शन इंप्रूवमेंट पॉसिबल नहीं है। और जेड़ा सिलेक्शन है वो डिपेंड करता है वेरिएबिलिटी या वेरिएशन दे उत्ते। अगर क्रॉप प्लांट दे अंदर वेरिएशन है तो सिलेक्शन होगा, अदरवाइज सिलेक्शन नहीं होगा। इट मींस ब्रीडिंग किस पे डिपेंड करती है या ब्रीडिंग दी सक्सेस किस पे डिपेंड करूगी। और तोड़े तो वर्डिंग अलग अलग आ सकती है, तो आ सकता है कॉर्नर स्टोन ऑफ द ब्रीडिंग या सक्सेस ऑफ ब्रीडिंग किस पे डिपेंड करती है। तो ब्रीडिंग दे जेडे कॉर्नर स्टोन है या जो सक्सेस ऑफ ब्रीडिंग है दो चीज पे डिपेंड करती है। तो सक्सेस ऑफ ब्रीडिंग आ वर्डिंग एग्जाम च नहीं आऊगी, एग्जाम च वर्डिंग आऊगी कॉर्नर स्टोन ऑफ ब्रीडिंग। तो कहता भी केड़ा ब्रीडिंग दा कॉर्नर स्टोन हैगा या ब्रीडिंग दी सक्सेस किस ते डिपेंड करदी है। तो किस ते डिपेंड करदी है तो ब्रीडिंग दी जेडी सक्सेस है वो डिपेंड करदी है थोड़ी पहला वेरिएशन ते, क्योंकि विदाउट वेरिएशन सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। और दूसरा डिपेंड करूगी सिलेक्शन, क्योंकि वेरिएशन होगा तो सिलेक्शन होगा और सिलेक्शन होगा तो इंप्रूवमेंट होगा। अगर वेरिएशन नहीं है तो सिलेक्शन नहीं होगा और सिलेक्शन नहीं होगा तो भाई साहब ब्रीडिंग नहीं होगी। क्लियर है इत्थों तक। अब तुसी पिछाले वर्ड यूज किया भी सानू क्वालिटी इंप्रूव करनी है। पहला तो तुसी क्या भी ब्रीडिंग की हैगा, फिर क्या ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव च तुसी क्या भी सानू क्रॉप दा क्वालिटी इंप्रूव करना है। अब क्वालिटी इंप्रूव करना है तो किवें इंप्रूव कराऊं असी अगे अलग टॉपिक लेवांगे। अब पहला अपनी गल आ गई भी असी ब्रीडिंग करना चाह रहे हैं तो ब्रीडिंग करने वास्ते सानू की चाहिएगा वेरिएशन चाहिए। अब वेरिएशन बच्चे की हैगा पहला तो देखो। अब वेरिएशन ठीक है जी, वो कहता वेरिएशन। आप देखो बच्चे में एक वी आ लिखा है और एक वी आ लिखता मैं, या एक ए आ लिखा है एक ए में आ लिखा, लेकिन इस दोनों च कुछ फर्क डिफरेंस हैगा, इस दोनों के अंदर कुछ डिफरेंस है। तो जेड़ा अमंग द वर्डिंग जो डिफरेंस है उन्होंने वेरिएशन कहते। या आप मैं जिवें क्लास की गल करा भी, हुण क्लास के अंदर देखो जिन्ने भी तुसी स्टूडेंट बैठे हो कि सारिਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ शकल शेप साइज एक हैगा, सारिਆਂ ਦੇ अंदर क्लीयर कट डिफरेंस हैगा। तो जो डिफरेंस अमंग द इंडिविजुअल जो होंदा वेरिएशन होंदा, डिफरेंस अमंग द वो वेरिएशन होंदा। इस वेरिएशन को यूटिलाइज करके असीं की करांगे क्रॉप इंप्रूवमेंट करांगे यानी ब्रीडिंग करांगे। और वेरिएशंस बच्चे जेड़ा हैगा
ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰੌਪ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। पहला वेरिएशन मैं क्लियर करदा, कंफ्यूजन होगा नहीं था। जो वेरिएशंस है, एक वेरिएशंस होता है जेनेटिक वेरिएशन। जेड़ा जेनेटिक वेरिएशन है एक जनरेशन तो नेक्स्ट जनरेशन च जाऊगा, मतलब हेरिटेबल होता है। जदों कोई भी करैक्टर एक जनरेशन तो नेक्स्ट जनरेशन च ट्रांसफर होगा तो उन्होंने कहा जाता है हेरिटेबल। तो उन्होंने की कहा जाता है हेरिटेबल करैक्टर कहा जाता है, और उस प्रोसेस को कहा जाता है हेरिटेबिलिटी। ठीक है जी। तो पहला होंदा जेनेटिक वेरिएशंस, क्लीयर। सेकंड वेरिएशंस जेड़ा होंदा हैगा वो होंदा इन्वायरमेंटल वेरिएशन। अब जिवें आपां पंजाब च रह रहे तो साडे अंदर पंजाब दे इन्वायरमेंट दा इफेक्ट है, वही अगर असी यूपी बिहार च रहिंदे तो उधर दा इफेक्ट होना सी, वही होना तो पंजाब तो चले जाओ कनेडा, किते चल जाओ, है ना, राजा बेटा कनेडे जाएगा तो अब कनेडा जावांगे तो उदा दा क्लाइमेटिक इफेक्ट आ जाऊगा। तो जो क्लाइमेट की वजह करके जो वेरिएशन आ रहा है वो हेरिटेबल नहीं होता। मैं एक और सिंपल एग्जांपल ले लेना इस मौसम के हिसाब से। हुण गर्मी का मौसम है, हुण जिवें तुसीं क्लासेज लगाण आ रहे दोपहर च, तो तुसीं देखोगे भी 5-7 दिनों के बाद थोड़ा बहुत थोड़े फेस के उत्ते टैनिंग होगी, है ना, रंग काला पे जाऊगा किसी फिकरां च। तो हुण जिहड़ी टैनिंग होगी या रंग जो काला पऊगा कि वो परमानेंट ही जो टैनिंग रहूगी, दोबारा नॉर्मल कंडीशंस आणगियां तो वापस नॉर्मल हो जाऊगा। हुण जो जो स्किन के अंदर जो टैनिंग हुई वही इन्वायरमेंट की वजह करके, हुण हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन है तो स्किन टैन रहूगी, और जिवें नॉर्मल कंडीशंस आओगी नॉर्मल हो जाऊगा। तो वो परमानेंट नहीं है। और जो इन्वायरमेंट की वजह करके आंदा उन्होंने कहते नॉन जेनेटिक वेरिएशंस, केड़ा, और नॉन जेनेटिक वेरिएशन का दूजा नाम की है इन्वायरमेंट वेरिएशंस। तो वैसे तो वेरिएशंस दो तरह का होता है, लेकिन असी क्रॉप इंप्रूवमेंट के अंदर जो वेरिएशंस यूटिलाइज करते हैं दो तरह का वेरिएशन यूटिलाइज करते हैं। एक नेचुरल वेरिएशन यूटिलाइज करते भी, नेचुरल मतलब अब जिवें इंग्लैंड का परसन है तो इंग्लैंड का है तो उदा ही रहूगा ना। अब उस इंग्लैंड वाले इंडिया च ले आओ, फिर उसनू यूटिलाइज करो किसी भी चीज के अंदर, तो एक तो नेचुरल वेरीबिलिटी होगी, और एक की होंदी आर्टिफिशियल होंदी है। तो कहता भी जो वेरीबिलिटी है, जो वेरिएशंस है वो दो तरह की होंदी है। वेरीबिलिटी कितने तरह की होंदी है बच्चे, दो तरह की। पहली होंदी है नेचुरल वेरीबिलिटी। अब नेचुरल वेरीबिलिटी का मैं अगर सिंपल एग्जांपल होर पंजाब की कंडीशन के अकॉर्डिंग लेवा तो सीट्रस मोस्ट कॉमनली पंजाब च ग्रो होंदा। अब किन्नू असी यूएसए तो ले आए, पहला पंजाब च किन्नू नहीं होंदा सीगा। 1957 के अंदर यूएसए तो भी कितने कैलीफोर्निया तो पंजाब च ट्रांसफर हो गया। ठीक है, अब किन्नू आ गया तो एक तरह का वेरिएशन आ गया ना भी सीट्रस के अंदर भी, पहला तो सीट्रस के अंदर और तरह के फ्रूट हो रहे थे, अब किन्नू हो रहे। तो एक तो होंदा नेचुरल वेरीबिलिटी, या दूजा की कीता जिवें मैं थोड़ा सिंपल एग्जांपल ले लेना भी, तुसी अदर एरिया तो जिवें मतलब पूरे इंडिया के अंदर और इंडिया तो बाहर भी किसी कंट्री तो तुसी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटी ले आए। बहुत जे फार्मर इदा दे हैगे पंजाब च कुछ जो अलग अलग एरिया तो लिया के डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप लगा रखी है वैसे शौक के तौर पर। तो उन्होंने की किया अलग अलग एरिया तो मटीरियल इकट्ठा किया, तो उन्होंने की कहा जाता है जो असीं कोई भी चीज कलैक्ट करते तो उन्होंने कहते कलैक्शन। तो जो कलैक्शन कर रहे हो नेचुरल वेरिएशन हैगा। ठीक है जी। तो पहला की करांगे असीं कलैक्शन करांगे, और की दा कलैक्शन करांगे वैरायटी दा, अलग अलग वैरायटी ले आऊंगे। और वैरायटी नूं बच्चे ब्रीडिंग लैंग्वेज जर्म प्लाजम या जीनोटाइप भी किया जाता है। की कहा जाता है तो असीं या तो बोलांगे भी कलैक्शंस ऑफ वैरायटी या कलैक्शंस ऑफ जीनोटाइप, या असीं बोलांगे जर्म प्लाजम कलैक्शन। जर्म प्लाजम मतलब वैरायटी कलैक्ट कर लांगे असीं, या असीं की करांगे अदर एरिया तो कोई भी क्रॉप ले आवांगे। जदों अदर एरिया तो कोई भी क्रॉप इंट्रोड्यूस लेके आया जाओगे तो क्या जाओगे इंट्रोडक्शन। जिवें यूएसए तो हुण किन्नू पंजाब च आया तो की इंट्रोडक्शन, पंजाब दे अंदर राइस साउथ इंडिया तो आया तो की इंट्रोडक्शन, क्योंकि राइस जिहड़ा पंजाब दा ट्रेडिशनल क्रॉप नहीं है। 1966 ਦੇ बाद राइस कल्टीवेशन स्टार्ट होया पंजाब च। तो दूजा असीं की करांगे इंट्रोडक्शन। अब आ जिहड़ा इंट्रोडक्शन आ भी की हैगा नेचुरल वेरीबिलिटी हैगा। और तीजा की करांगे बच्चे असीं डोमेस्टिकेशन। की करांगे भी जो वाइल्ड प्लांट है, ठीक है जी, तो वाइल्ड प्लांट नूं किस च ले आवांगे असीं कल्टीवेटेड फॉर्म च ले आवांगे।
ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਹਨਾ, चिबड़ की चटनी का बड़ा चाह रहिंदा सानू, सही बोले। अब वो चिबड़ जिहड़ा सी बेचारा पहला की वाइल्ड सी, मतलब कल्टीवेटेड नहीं किया जा रहा, जदों उहनूं बीज नहीं रही से, मतलब जदों आपां कल्टीवेट नहीं करे उस टाइम की हुंदा, कोड़ा हुंदा सीगा। अब हुण जिहड़ा चिबड़ है वो चिबड़ दे अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ चिबड़, कोई छोटे चिबड़ कोई मोटे चिबड़, है ना, किसी दी स्किन बिल्कुल स्मूथ है, किसी दी स्किन दे उत्ते पेंटिंग है, मतलब कोई ना कोई पैटर्न है। तब वो देखो चिबड़ पहला वाइल्ड सीगा, बाद च असीं बीजना स्टार्ट करता। जदों कोई भी वाइल्ड प्लांट नूं कल्टीवेटेड प्लांट दे अंदर अगर कन्वर्ट कर देंदे ते इहनूं कहंदे पुੱਤ डोमेस्टिकेशन। की कहंदे? तां जिहड़ा डोमेस्टिकेशन हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, या की हो गया, जर्म प्लाज्म कलैक्शन हो गया, तो इहनूं कहंदे नेचुरल वेरीबिलिटी। और दूजा हुंदा आर्टिफिशियल वेरीबिलिटी। दूजा किहड़ा बच्चे? अब आर्टिफिशियल वेरीबिलिटी किहड़ा हैगा? अब आर्टिफिशियल दा मतलब तुसीं आप समझदे हो, जिथे आर्टिफिशियल वर्ड यूज हो गया ना, ਇਹਦਾ मतलब ह्यूमन इंटरफेरेंस है। की हैगा? इंटरफेरेंस है। ह्यूमन इंटरफेरेंस का मतलब भी कोई साइंटिस्ट या कोई ब्रीडर कुछ ना कुछ करूगा। अब वो साइंटिस्ट या ब्रीडर करूगा की बेचारा, या तो की बना दूगा, हाइब्रिड बना दूगा। की बना दूगा? तो हाइब्रिड बनाने की प्रोसेस नूं कहंदे हाइब्रिडाइजेशन। तो असीं डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिड के बारे पढ़ांगे। या वो की कर दूगा, ਉਹਦਾ प्लोइडी लेवल चेंज कर दूगा। नॉर्मल सैल ਜਿਹੜੀ डिप्लोइड होंदी है, या की कर दूगा, मोर देन 2 कर दूगा। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰੋਪ ਦਾ प्लोइडी लेवल चेंज ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, मोर देन 2, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਲੀਪਲੋਇਡੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਪੋਲੀਪਲੋਇਡੀ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਪਲੋਇਡੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਪੋਲੀਪਲੋਇਡੀ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, म्यूटेशंस कर दांगे। म्यूटेशंस भी पढ़ांगे ਅਸੀਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, तो मैं सिंपल फॉर्म च लिख लिया, ट्रांसजेनिक। ट्रांसजेनिक प्लांट डेवलप कर देंगे। केड़े प्लांट डेवलप कर देंगे? और जेडे ट्रांसजेनिक प्लांट होंदे ने कहंदे जीएमओ क्रॉप, जेनेटिकली मॉडिफाई। अब आ जीएमओ क्रॉप जेनेटिक इंजीनियरिंग तो बनता है। जदों तुसी बुक्स च पढ़ोगे तो उत्थे जेनेटिक इंजीनियरिंग वर्ड यूज होया, लेकिन असीं की कीता भी जेड़ा जेनेटिक इंजीनियरिंग दा जो एंड प्रोडक्ट है, और एंड प्रोडक्ट की हैगा जीएमओ या ट्रांसजेनिक। असीं लिखता ट्रांसजेनिक। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਥਰੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਵੈਰਾਈਟੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ सोमेटिक हाइब्रिड या समा कलोनल वैरायटी ऑफ मस्टर्ड दसो। अब आ समा कलोनल वैरायटी बायोटेक तो डेवलप होती है। या मैं ऊपर जावा जेड़ा तुसीं लिखा ना ट्रांसजेनिक यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग, वो कहंदा व्हाट इज द जेनेटिक इंजीनियरिंग, वो कहंदा इट इज द कॉम्बिनेशंस ऑफ टिश्यू कल्चर एंड बायोटेक। तो टिश्यू कल्चर और बायोटेक के कॉम्बिनेशन की कहते जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते। और जेनेटिक इंजीनियरिंग च की होंदा गा, जेनेटिक मेकअप नूं मॉडिफाई किया जाता, मतलब जीएमओ प्लांट डेवलप किया जाता है। आ सब कुछ करने के बाद हुण तुसीं बच्चे वेरीएशंस क्रिएट कर लिया, क्योंकि तुसीं आप क्या भी सब तो पहला सानू क्रॉप इंप्रूवमेंट वास्ते वेरीएशन चाहिए, तां वेरीएशन तां तुसीं क्रिएट कर लिया। अब इस वेरीएशंस नूं यूटिलाइज करके की करोगे, तुसीं सिलेक्शन करोगे। ठीक है जी। अब सिलेक्शन कर लिया। अब सिलेक्शन करने के बाद चेक करना पऊगा नहीं भी सही होया कि नहीं होया। अब किसी चीज नूं असीं क्रॉस चेक करदे तो उहनूं कहंदे इवैल्यूएशन। तो सिलेक्शन के बाद असीं की करांगे, इवैल्यूएशंस करांगे। और जिवें ही इवैल्यूएशंस हो गया क्रॉप दा या वैरायटी दा, तो फिर करांगे मल्टीप्लीकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी इहदा ब्रीडिंग होंदा गा। आपां सिर्फ इस फ्लो चार्ट नूं पढ़ना है हुण। तो कहंदा भी ब्रीडिंग किवें होऊगा या क्रॉप इंप्रूवमेंट किवें होगा, तो तुसीं क्या भी सिलेक्शन से होगा। और तुसीं क्या भी सिलेक्शन किस ते डिपेंड करूगा, वेरिएशन से। और तुसीं क्या भी वेरिएशन किवें आऊगा, तो कहंदा भी वेरिएशंस दो तरीके नाल होगा, या तो नेचुरल वेरिएशन यूटिलाइज होगा या आर्टिफिशियल होगा। अब ब्रीडिंग दा एडवांटेज जो तुसीं ऑब्जेक्टिव्स पढ़े सी, तो ब्रीडिंग दा एडवांटेज है भी हाई यील्ड वैरायटी डेवलप होगी, डिजीज रेजिस्टेंस डेवलप होगा। एक विचाले में स्किप करता सीगा, एबायोटिक स्ट्रेस रेजिस्टेंस जिवें ड्रोट टॉलरेंट, सैलिनिटी, एल्केनिटी टॉलरेंट डेवलप होणगियां, क्वालिटी वैरायटी डेवलप होणगियां, शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी आणगियां, सिंक्रोनस मैच्योरिटी एंड नॉन सेटरिंग वैरायटी डेवलप होणगी। आता एडवांटेज है। अब कोई मर्जी कंपोनेंट ले लो बच्चे, जिहदा एडवांटेज होता है उहदा डिसएडवांटेज भी होंदा। तो कहंदा भी ब्रीडिंग दा एडवांटेज की है, तो ब्रीडिंग दे एडवांटेज दा जो ऑब्जेक्टिव सी वो ब्रीडिंग एडवांटेज है। तो कहंदा डिसएडवांटेज की है, तो देखो बच्चे की डिसएडवांटेज। सब तो पहला दसो भी कोई भी फार्मर कल्टीवेशन कर रहा है या क्रॉप ग्रो कर रहा है या वैरायटी ग्रो कर रहा है, उन्होंने किदा दा वैरायटी चाहिए, यूनीफॉर्म चाहिए या वेरीएबल वाला वैरायटी। यूनीफॉर्म का मतलब जिवें उन्हें हुण राइस ग्रो किया, तो राइस प्लांट की
जो हाइट है सेम होनी चाहिए है या कुछ बूटे ज्यादा हाइट दे कुछ घट हाइट दे, तो यूनीफॉर्म चाहिए। इट मीनस जो ब्रीडिंग है वेरीएबिलिटी या ब्रीडिंग जेड़ा वेरिएशन नु डिक्रीज करता है। जो वेरिएशन डिक्रीज हो रहा है मतलब कि यूनीफॉर्मिटी नु प्रमोट करता है, और जो वेरिएशन डिक्रीज होगा तो भाई वेरिएशन के बिना तो तुम ब्रीडिंग कर ही नहीं पाओगे। अब सारी क्रॉप के अंदर ब्रीडिंग कर करके यूनीफॉर्मिटी ले आए तो ब्रीडर भाई साहब दी दुकान बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वेरिएशन खत्म हो गया तो सिलेक्शन किवें करूंगा, और जदों तक सिलेक्शन नहीं होगा तो इंप्रूवमेंट किवें करूंगा। तो कहता भी ब्रीडिंग का डिसएडवांटेज की हैगा, क्योंकि इतों क्वेश्चन आऊगा थोड़े तो ब्रीडिंग का पहला डिसएडवांटेज जेड़ा हैगा, डिसएडवांटेज वर्ड यूज करो या डीमेरिट वर्ड यूज करो। तो कहता भी डीमेरिट ऑफ ब्रीडिंग, तो पहला डीमेरिट की है ब्रीडिंग जेड़ा यूनीफॉर्मिटी क्रिएट करता है, मतलब वेरिएशन नु डिक्रीज करता है। तो पहला की करता है यूनीफॉर्मिटी, यूनीफॉर्मिटी मतलब डिक्रीज वेरिएशंस, और जब वेरिएशंस डिक्रीज होगा किसी भी क्रॉप का तो नैरो जेनेटिक बेस होगा, मतलब जेनेटिक मेकअप जेड़ा लिमिटेड हो जाएगा, मतलब नैरो हो जाएगा। तो दूजा की कर देगा नैरो जेनेटिक बेस डेवलप करता है। और जदों किसी क्रॉप के अंदर यूनीफॉर्मिटी आ गई, और ओदा जेनेटिक यूनीफॉर्मिटी क्यों आ गई? क्योंकि नैरो जेनेटिक बेस हो गया। और जदों किसी भी क्रॉप का नैरो जेनेटिक बेस हो गया, चाहे अपने ह्यूमनस बीइंग के अंदर लगा लो, हुण ह्यूमनस बीइंग के अंदर या आपां पंजाब की गल करिए तो कितना क्लीयर कट डिफरेंस है पॉपुलेशन च? नहीं है ना डिफरेंस, जिवें पंजाबी नॉन पंजाबी कोई पता नहीं लगता, तो वेरिएशन घट गया। ओदी वजह करके की साडे अंदर माइनर प्रॉब्लम्स आ रही है कि नहीं आ रही? माइनर प्रॉब्लम मतलब डिजीज आनियां स्टार्ट हो गई। तो जदों यूनीफॉर्मिटी घटदी है किसी भी पॉपुलेशन के अंदर, जरूरी नहीं है क्रॉप और ह्यूमनस बीइंग के अंदर भी है, अगर यूनीफॉर्मिटी इंक्रीज होगी तो वेरिएशन घटूगा, और वेरिएशन घटूगा इसका मतलब नैरो जेनेटिक बेस डेवलप होगा, और नैरो जेनेटिक बेस डेवलप होने माइनर डिजीज आनियां स्टार्ट हो जानी। और जिवें क्रॉप के अंदर भी देखोगे तो क्रॉप जो यूनीफॉर्मिटी तो डेवलप कर ली, लेकिन डिजीज वाली प्रॉब्लम फेस करनी पे रही है, इंसेक्ट पेस्ट प्रॉब्लम फेस करनी पे रही है। इट मींस ब्रीडिंग की कर देगा प्रमोट द माइनर डिजीज, तो माइनर डिजीज नु प्रमोट कर देगा। क्लियर? तो कहता भी ब्रीडिंग की करता है माइनर डिजीज नु प्रमोट करता है। ओदे बाद होर की ब्रीडिंग का ड्राबैक है। अब मैं इतने वीट का एग्जाम्पल लूंगा। अब वीट क्रॉप के अंदर जिन्ना ईल्ड इंक्रीज होना सी हो चुका है कि उसके बाद भी ईल्ड इंक्रीज हो जाऊगा वीट का। तो ब्रीडिंग ने की किया, कुछ क्रॉप का जिवें वीट और राइस है ओदा ईल्ड पोटेंशियल मैक्सिमम इंक्रीज करता, अब वो ईल्ड इंक्रीज नहीं कर पा रहा। जदों कोई भी क्रॉप का ईल्ड इंक्रीज करन च असीं फेल हो जाइए या कोई क्रॉप का ईल्ड इंक्रीज ना कर पाइए तो उन्होंने कहते बच्चे ईल्ड प्लेट्यू। की कहते? तो तीजा ड्राबैक है ईल्ड प्लेट्यू। वो कहता ईल्ड प्लेट्यू मीनस वो कहता भी राइस और वीट का असीं की कर चुके हैं भी ईल्ड इंक्रीज कर चुके हैं, या राइस और वीट क्रॉप की ईल्ड के अंदर वेरीबिलिटी खत्म हो चुकी है। क्यों खत्म हो चुकी है? भी जिन्ना ईल्ड इंक्रीज होना उन्ना हो चुका, हुण और नहीं हो सकता। और जदों कहता भी जदों वीट और राइस क्रॉप की ईल्ड वेरीबिलिटी जदों डिक्रीज होगी या ईल्ड वेरीबिलिटी जो है